بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، جب ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا نے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ابلیس یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ کر شجر ممنوعہ کا پھل کھایا، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہا کے یہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ کائنات عالم کے پہلے انسان تھے، اور زمین پر حضرت انسان کی نسل بڑھانے کے لیے ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کی جاتی تھی، اور ایک حمل کے پیدا ہونے والے بچے اللہ کے حکم سے آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ دوستوں، اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں قابیل اور حابیل 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت قریب آیا، تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگا کہ یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، وہی شخص اقلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے گیہوں کا گٹھا اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب یہ دونوں قربانیاں پیش کی گئی، اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا۔ یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ دوستوں، قرآن مجید میں حابیل اور قابیل کا قصہ سورہ المائدہ میں آیا ہے کہ جب حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے مطابق حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں تم کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ رب العزت کا خوف ہے۔ اگر تم اس انتہا تک پہنچ جاؤ کہ مجھے قتل کر ہی دو تو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی تمہارے سر ہوگا۔ چنانچہ قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت ہو گئی، اور یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ جب قابیل حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کر چکا تو اسے فکر ہوئی کہ اب اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ وہ حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا مارا پھرتا رہا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی لاش 1 سال تک اپنی کمر پر لادے پھرتا رہا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، اور پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔
काबील ने जब कव्वे को देखा तो अफसोस करने लगा कि मैं अपने भाई की लाश को भी ना छुपा सका, और फिर उसने भी इसी तरह किया और फिर हजरत हाबील अलैहिस्सलाम को जमीन के अंदर दफन कर दिया। दोस्तों, जब हजरत हाबील अलैहिस्सलाम की लाश दफन हो गई तो काबील अपनी बहन अकलीमा को लेकर शैतान के मशवरे पर यमन की तरफ फरार हो गया, क्योंकि मुसलसल शैतान उसके पास आता रहा और उसको इस बात से डराता रहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। इसलिए वो अपनी बहन को लेकर दूर दराज वादियों में फरार हो गया और वहीं रहने लगा। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दीने हक को छोड़कर पहले आतिश परस्ती, बाद में बुत परस्ती शुरू कर दी। दुनिया में कत्लो गारत गरी, हसद और फसाद और आतिश परस्ती व बुत परस्ती की बुनियाद काबील ही ने रखी, और तारीखे आलम में सबसे पहले उसने जिना का इर्तिकाब भी किया। उसने अपनी बहन अकलीमा के साथ जिना किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बेटे हाबील के कत्ल का बड़ा रंजो गम था, क्योंकि वो उनका जानशीन था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसकी याद में 40 साल तक रोते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने उन्हें हाबील के बदले एक निहायत नेक और सादतमंद बेटा अता फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने उस बेटे का नाम शीश रखा, जिसके माना है अल्लाह का अतिया, यानी अल्लाह की तरफ से इनाम। हजरत शीश अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबुवत से सरफराज फरमाया। दोस्तों, हाबील के कत्ल के बाद काबील ने अपनी बहन अकलीमा से शादी की, यानी जिना किया, जिसके बाद जिना की इब्तिदा हुई। जिना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सजा दुनिया में भी रखी है। मरने के बाद अल्लाह ताला के यहाँ इस गुनाह की बहुत सख्त सजा है। जिना के बारे में और कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, जिनाकार औरत और मर्द में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ, उन पर अल्लाह की शरीयत की हद जारी करते हुए तुम्हें हरगिज तरस नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हें अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान है तो उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए। दोस्तों, जिना की शरीयत की सजा ये है कि अगर शादीशुदा मर्द या औरत जिना करे तो उसको संसार किया जाए, यानी पत्थर मार मार कर कत्ल कर दिया जाए, और अगर गैर शादीशुदा जिना का मुर्तकिब हो जाए तो उसको 100 कोड़े मारे जाएं, और ये सजाएं सरेआम मजमा में हो ताकि लोग उससे इबरत हासिल करें। हदीसे मुबारका में है कि 7 आसमान और 7 जमीनें शादीशुदा जिनाकार पर लानत करती हैं, और जहन्नुम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी तेज बदबू फैलेगी जिससे जहन्नुम वाले भी परेशान हो जाएंगे, और आग के अजाब के साथ इनकी रुसवाई जहन्नुम में होती रहेगी। एक दूसरी हदीस शरीफ में है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिना करने वाला जिना करते वक्त मोमिन नहीं रहता। जिना तो दूर की बात है, अल्लाह तबारक व ताला ने इसके करीब जाने से भी मना फरमाया है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, और बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। और हजरत मैमुना रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई पर रहेगी जब तक इनमें जिना से पैदा होने वाले बच्चे आम ना हो जाएं, और जब इनमें जिना से पैदा होने वाले बच्चे आम हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला इन्हें अज़ाबात में मुब्तला कर देगा। प्यारे दोस्तों, इस हदीसे मुबारका से पता चलता है कि मुस्लिम देशों के अंदर आजकल ये जो अज़ाबात आ रहे हैं वो इसी वजह से हैं कि मुस्लिम देशों में भी अब जिनाकारी आम हो रही है। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक औरत इब्लीस के तीरों में से एक तीर है। जिसने किसी हुस्नो जमाल वाली औरत को देखा और वो उसे पसंद आ गई, फिर उसने अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए अपनी निगाहों को फेर लिया, तो अल्लाह तबारक व ताला उसे ऐसी इबादत की तौफीक अता फरमाएगा जिसकी लज्जत इसे हासिल होगी।
प्यारे दोस्तों, जिना से बचने और इससे नफरत पैदा करने का तरीका एक हदीस शरीफ में यूं मौजूद है। अगर इस हदीस पर गौर किया जाए और अपनी जात पर गौर किया जाए तो दिल में इस गुनाह से जरूर नफरत पैदा होगी। हजरत अबू अमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए। लोग इसकी तरफ ध्यान देकर इसे डांटने लगे और इसे पीछे हटाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। चुनाचे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, क्या तुम अपनी वालिदा यानी माँ के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग भी इसे अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बेटी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग भी इसे अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बहन के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह तबारक व ताला की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग भी इसे अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी फूफी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग भी इसे अपनी फूफी के हक में पसंद नहीं करते। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम अपनी खाला के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग भी इसे अपनी खाला के लिए पसंद नहीं करते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इसके जिस्म पर रखा और दुआ की कि ए अल्लाह, इसके गुनाह माफ फरमा और इसके दिल को पाक फरमा और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। रावी कहते हैं कि इसके बाद उस नौजवान ने कभी भी किसी की तरफ तवज्जो नहीं दी। दोस्तों, दुआ है कि परवरदिगारे आलम हमें इस बड़े और कबीरा गुनाह से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।